Good morning to one and all. Welcome back once again. Today's session on thermal power plant. Now we discuss about the ash handling plant. What is the ash handling plant? In thermal power plant, coal is used as a fuel for generating electricity. After burning of coal, 40% of total coal consumption is converted into ash which need to be properly disposed of from the thermal power plant. थर्मल पावर प्लांट में कोल हम यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल करके फॉर जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. आफ्टर बर्निंग ऑफ द कोल 40% ऑफ कोल कन्वर्टेड इनटू द एश फॉर्म. 40% कोल एश में कन्वर्ट होता है जिसका डिस्पोज करना बहुत ज़रूरी है फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट. द एश फ्रॉम द बॉयलर इज कलेक्टेड इन टू फॉर्म्स. First one is the bottom ash, a slurry form. It's a waste which is dumped into the ash pond. Ash generated below furnace of the thermal power plant is called the bottom ash. The value of bottom ash generated is around 20% of total ash. Bottom ash is mostly coarse in nature, hence it needs to be further crushed before being transported to ash handling system. ओके जो एश जनरेट होती है थर्मल पावर में वो 20% ऐश हम लोगों को बॉटम ऐश फर्नेस के थ्रू मिलती है. बॉटम ऐश इज मोस्टली कोर्स इन नेचर, हेंस इट नीड्स टू बी फर्दर क्रश्ड बिफोर being transported to ash handling plant. And second one is the fly ash. Around 80% of ash generated in thermal power plant in fly ash. It is in form of very fine particles which is collected via economizer, air preheater hopper and electrostatic precipitator. Now dear student, what is the ash handling plant or ash handling system? Ash handling plant or ash handling system in thermal power plant are used to cool down the ash to manageable temperature, transferred to disposal area or storage which is further utilized in other industries. Ash handling plant यानी क्या या ash handling system यानी क्या कि जो थर्मल पावर प्लांट में ऐश मिलती है हम लोगों को, उसको मैनेजेबल टेम्परेचर पर कूल डाउन किया जाता है और उसे फिर हम ट्रांसफ़र करते हैं डिस्पोजल एरिया में, या हम लोग उसे स्टोर कर सकते हैं जो दूसरी जो इंडस्ट्री है उसका यूटिलाइजेशन कर सके. इक्विपमेंट्स यूज्ड इन ऐश हैंडलिंग सिस्टम इन थर्मल पावर प्लांट जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर रहता है, या फीड डिस्चार्ज लसी गेट रहते हैं, जेट पंप रहता है, ट्रांसफर बीन, स्टोरेज बीन, ड्राई बॉटम ऐश कन्वेयर, ड्राई बॉटम ऐश सिस्टम, स्लरी पंप. These are all the equipments used in the ash handling plant. Now next one is the pulverizing plant. In modern thermal power plant, coal is pulverized. What is mean by pulverized or pulverizer? The basic function of pulverizer in thermal power plant is to break down and crush the coal lumps into fine particles from before it is taken to the boiler for burning. जैसे कि पल्वराइजर का फंक्शन क्या है कि थर्मल पावर प्लांट में जो वैगन थ्रू हम अनलोड करते हैं कोल, उसे वो जो कोल है ये बड़े पार्टिकल्स में रहते हैं, बड़े बड़े स्टोन रहते हैं कोल्स के, इसको फाइन पार्टिकल्स में क्रश करने का काम पल्वराइजर करता है.
बिफोर इट इज टेकन टू द बॉयलर फॉर बर्निंग। यानी कि बॉयलर को यानी कोल बर्न करने के पहले की जो प्रोसेस है दैट इज द पल्वराइजेशन। ओके, pulverization of coal basically breaks the big coal lumps and increase the surface area, which is most important to facilitate efficient burning of coal. If the coal is not pulverized, the coal might not burn completely, the resulting in wastage of fuel. Also, pulverization of coal helps the boiler to respond to load variation more promptly. In thermal power plant, the raw coal transported via trucks or railways is first crushed to smaller size in crusher. This coal is then fed to a coal mines where it is crushed to a fine particles, fine powder formed by applying a force either by hammering or by combined effect of compressive and shearing force. Once the coal of appropriate fineness size is achieved, it is carried along with air and fed to the boiler. Okay, so pulverization is means of exposing a large surface area to the action of oxygen and consequently helping combustion. Pulverizing process consists three stages classified as feeding, drying and grinding. Now next is the boiler. Boiler is a device meant for producing steam under pressure. Steam boilers are broadly classified into fire tube and water tube boilers. The function of boiler is to generate steam at desired pressure and temperature by transferring heat produced by burning of fuel in a furnace to change water into steam. बॉयलर का फंक्शन क्या है कि जनरेट द स्टीम। स्टीम जनरेट करना है, हम लोगों को वाटर का कन्वर्जन किस में करना है, स्टीम में करना है। तो बॉयलर में जो पानी है इसे बॉईल करने के लिए हम एज एन फ्यूल कोल यूज़ कर रहे हैं। कोल को बर्न करने के बाद उसके हीट के वजह से हमारे बॉयलर में जो पानी है वो गर्म हो जाएगा और उसका जो रूपांतर है वो स्टीम में होगा। ओके, जनरली वाटर ट्यूब बॉयलर्स आर यूज्ड फॉर electric power station. If the hot combustion gases are restricted to inside the tubes and are surrounded with water, then the boiler is known as a fire tube boiler. Okay, and second one is the if water is inside the tubes and hot gases are outside the tubes, then the boiler is water tube boiler. In the boiler, coal is burned and heat is utilized to convert water into steam. Flue gases after combustion of coal are exhausted to atmosphere through the chimney. जिसे हम लोगों ने अभी देखा है कि बॉयलर का काम है कि कोल बर्न होने के बाद जो हीट प्रोड्यूस होती है वो हीट के वजह से वाटर इज कन्वर्ट इनटू स्टीम फॉर्म, और उसके वजह से जो वो फ्लू गैसेस वहाँ पे रहते हैं वो फ्लू गैसेस हम वायर चिमनी बाहर छोड़ सकते हैं। फ्लू गैसेस आर पास थ्रू द सुपर हीटर, इकोनोमाइजर एंड एयर प्रीहीटर बिफोर रिलीजिंग टू द एटमॉस्फेयर। फ्लू गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज होने के पहले इसकी प्रोसेस रहती है, ये सुपर हीटर के थ्रू जाते हैं, देन इकोनोमाइजर एंड देन एयर प्रीहीटर आफ्टर इट रिलीज टू द एटमॉस्फेयर। Now next is the turbine. Turbine. In a thermal power plant, generally 3 turbines are used to increase the efficiency. The dry and superheated steam obtained from the superheater is fed to the steam turbine. स्टीम टरबाइन को ड्राई और जो सुपर हीटेड स्टीम है जिसका मॉइस्चर हम लोग सब निकाल लेते हैं सुपर हीटर के थ्रू, तो वो स्टीम हम लोग स्टीम टरबाइन को प्रोवाइड करते हैं. द स्टीम इज एक्सपांडेड इन द स्टीम टरबाइन.
Therefore, steam attains a higher velocity. Potential energy in the steam due to pressure and internal energy is converted into kinetic energy. There are number of stationary blades and moving blades. A partial drop of pressure is used to allow the steam into the moving blades. The pressure is gradually decreases in the blades as the steam passes through them. स्टीम टरबाइन जो है उसके जो ब्लेड्स रहते हैं स्टेशनरी या मूविंग ब्लेड्स रहते हैं, वो ब्लेड्स के ऊपर अगर थोड़ा भी स्टीम का प्रेशर पड़ता है तो उसके वजह से ब्लेड्स मूव होना शुरू करते हैं और प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीजेस इन द ब्लेड्स एज द स्टीम पासेस थ्रू देम. देर आर 3 टाइप्स. फर्स्ट वन इज द हाई प्रेशर टरबाइन, इसे HPT कहा जाता है. The superheated steam is directly fed to this turbine to rotate a heat. जैसे कि मॉइस्चर फ्री जो हीट है या मॉइस्चर फ्री जो स्टीम है ये डायरेक्टली टरबाइन के ब्लेड के ऊपर छोड़े जाते हैं कि जिसकी वजह से वो रोटेट होना शुरू करते हैं. देन सेकेंड वन इज द इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन IPT. The output from the HPT is reheated and used to rotate the intermediate pressure turbine. जो हमारा हाई प्रेशर टरबाइन का आउटपुट है उसके जैसे हम ब्लेड्स रोटेट होते हैं सुपर हीटेड स्टीम की वजह से, तो जो हीट है उसे फिर से रीहीट किया जाता है एंड दैट रीहीटेड हीट we use to rotate the intermediate pressure turbine. Last one is the low pressure turbine. The exhausted steam from the IPT. अभी IPT यानी कि जो intermediate pressure turbine है इसके जो blades है इसके ऊपर जो हम लोग steam छोड़ते हैं तो वो जो steam है इसे directly हम LPT के शाफ्ट पे छोड़ते हैं तो वो रोटेट होना शुरू करते हैं. डायग्राम में आप देख सकते हैं कि HPT सुपर हीटर के थ्रू जो स्टीम आ रही है वो HPT पे जा रही है. डायग्राम में देखिए आप एरो दिखता है, वो एरो से उसकी डायरेक्शन पता चलती है कि कौन से डायरेक्शन में स्टीम जा रही है. फिर रिमेनिंग जो हीट HPT पे गिरने के बाद जो हीट है बाकी की वो हीट IPT को सेंड की जाती है. ओके, देन आउटपुट ऑफ द HPT इज रीहीटेड, फिर से उसको रीहीट किया जाता है और उसके बाद आप देख रहे हैं यारो कि जो स्टीम HPT पे गिरी थी वो जो रिमेनिंग स्टीम है हमने RH को सेंड की. RH यानी रीहीटेड, यहाँ पे रीहीटेड फिर से उसको गर्म किया जाता है वो स्टीम को और देन अगेन इट सेंड टू द IPT. ओके, सो द आउटपुट ऑफ द IPT इज सेंड टू द LPT. ओके, एंड फिर LPT के ऊपर जो हम लोग एग्जॉस्ट स्टीम छोड़ते हैं IPT के ऊपर, उससे क्या होता है कि वो शाफ्ट जो है LPT का वो रोटेट होना शुरू करता है और जो बाकी की स्टीम है वो सेंड की जाती है कंडेंसर में फॉर कूल डाउन पर्पस. ऑल द टर्बाइंस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल शाफ्ट विच इज कनेक्ट टू द जनरेटर. मैंने पहले ही कहा था आपको कि टरबाइन अल्टरनेटर इज कनेक्टेड अल्टरनेटर इज कपल्ड विद द टरबाइन. ओके, सो इस टाइप का ये टरबाइन का वर्किंग रहता है. गॉट इट. और फर्स्टली तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि 3 टाइप्स के टरबाइन है, हाई प्रेशर टरबाइन, देन इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन और लो प्रेशर टरबाइन. कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने डायग्राम अगर लर्न कर ली या समझ ली तो आप लोगों को लिखना इजी जाएगा एग्ज़ाम में. जस्ट सुपर हीटेड के थ्रू जो है स्टीम आ रही है वो हम HPT पे डालते हैं. HPT के वजह वो जो सुपर हीटेड स्टीम है उसके वजह से टरबाइंस के ब्लेड जो है वो रोटेट होना शुरू करते हैं. देन जो हीट बाकी की हीट रहेगी वो सेंड किया जाता है रीहीटेड को. वहाँ वापस से क्या होता है वो जो हीट है उसे रीहीटेड किया जाता है
देन अगेन इट सेंड टू द आईपीटी। आईपीटी के शाफ्ट पे जब ये स्टीम का प्रेशर पड़ता है तो इसकी वजह से आईपीटी के ब्लेड्स रोटेट होना शुरू करते हैं। देन जो आईपीटी के ऊपर हम लोग स्टीम छोड़ेंगे उसके वजह से आईपीटी रोटेट होता है, राइट। बट जो स्टीम है वो जो स्टीम रिमेनिंग स्टीम वी सेंड टू द एलपीटी, उसकी वजह से एलपीटी भी रोटेट होता है, ओके। और ये अगर देखते हैं एचपीटी, आईपीटी, एलपीटी एंड जनरेटर इज कनेक्टेड ऑन अ सिंगल शाफ्ट, ओके। फिर एलपीटी के ऊपर जो स्टीम हम लोग छोड़ते हैं उसकी वजह से एलपीटी रोटेट होता है, लो प्रेशर टरबाइन हमारा रोटेट होना शुरू करता है, और जो रिमेनिंग स्टीम जो है वो हम कंडेंसर को सेंड करते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज द कंडेंसर। The surface condenser is a shell and tube heat exchanger where cooling water flows through tubes and exhaust steam fed into the shell surrounds the tubes. As a result, steam condenses outside the tubes. In a mixing type condenser, the exhaust steam from prime mover and cooling water directly comes in contact with each other. This helps in this helps in condensation of steam into water. The temperature of condensate is same as that of cooling water leaving the condenser. Okay. This condensate cannot be used as a feed water to the boiled as it contains salt and pollutants. In non-mixing type of condenser, steam coming out from turbine and cooling water does not come in contact directly. The cooling water is generally passes through the number of closed tubes and steam surround the tubes. As the condensate coming out from the condenser can be used as a feed water to the again boiler. This type of condenser are universally used. आप डायग्राम में देखिए, डायग्राम में आप लोगों को क्लियर होगा कि जो हम लोग स्टीम देखिए, यहाँ स्टीम हम लोग जैसे स्टीम देयर आर टू टाइप ऑफ कंडेंसर, फर्स्ट वन इज द मिक्सिंग टाइप और जेट कंडेंसर एंड सेकंड वन इज द नॉन मिक्सिंग टाइप और सरफेस कंडेंसर। ये दो अलग टाइप्स है कंडेंसर के। अब इन मिक्सिंग टाइप कंडेंसर में क्या होता है, जो एग्जॉस्ट स्टीम फ्रॉम द प्राइम मूवर के थ्रू जो एग्जॉस्ट स्टीम आती है एंड जो कूलिंग वाटर है ये डायरेक्टली कम्स इन कांटेक्ट विद ईच अदर, यानी कि स्टीम एंड वाटर का डायरेक्टली कांटेक्ट होता है और उसके हेल्प के वजह से स्टीम का कन्वर्जन किस में होता है, वाटर में होता है। टेम्परेचर ऑफ कंडेंसेट इज सेम एज दैट कूलिंग वाटर लिविंग इन द कंडेंसर। कंडेंसर में जो पानी है, कूलिंग वाटर है, वो उसका टेम्परेचर सेम रहेगा एज कंपेयर टू द कंडेंसेट, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज द नॉन मिक्सिंग टाइप कंडेंसर। अब नॉन मिक्सिंग टाइप और मिक्सिंग टाइप में क्या डिफरेंस है, तो जनरली कूलिंग वाटर पासेस थ्रू नंबर ऑफ क्लोज ट्यूब्स। ये जो हम लोग ट्यूब देख रहे हैं, अभी आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं ट्यूब्स, इसमें से जनरली कूलिंग वाटर्स जनरली पासेस थ्रू द क्लोज ट्यूब्स एंड स्टीम अराउंड द ट्यूब। ट्यूब के अराउंड स्टीम रहती है और एज द कंडेंसेट कमिंग आउट फ्रॉम द कंडेंसर कैन बी यूज्ड एज अ फीड वाटर टू द बॉयलर। दिस टाइप ऑफ कंडेंसर आर यूनिवर्सली यूज्ड, यानी कि जो ट्यूब्स है उसके आजू बाजू, ट्यूब्स के अंदर क्या है, कूल्ड वाटर है और ट्यूब्स के बाहर क्या है, गर्म स्टीम है, हॉट स्टीम है। अब ये हॉट स्टीम और ये ठंडा पानी, इसके वजह से इसका टेम्परेचर कंपेंसेट हो जाएगा और जो रिमेनिंग वाटर रहेगा ये अगेन हम सेंड करेंगे बॉयलर को, ओके। आई होप आप लोगों को यहाँ तक का सभी डिटेल्स समझ में आए होंगे। सो नेक्स्ट part we will see in next lecture. Thank you very much.